Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and do hit the notification bell button to be notified every time a new video drops here on this channel. And this video is really out of my genre. Like I don't make these full-fledged weight loss kind of videos. मैंने कभी नहीं बनाई. I have lost weight in the past and तब तो मेरा बहुत drastic transformation था. I lost around 24 to 25 kgs and now I have again lost the weight. Obviously वो मैंने gain कर लिया था over the years and I lost weight after marriage, जिसके कारण I do get questions जब भी मैं videos डालती हूँ and people do see, since I have a public profile, वो देखते हैं that after the marriage I have lost so much weight and everything. So I planned on making a full-fledged video जिसमें मैं सारे questions answer करूँगी, like what's my diet, what's my exercise routine, मैं gym में क्या exercise करती हूँ, if I concentrate more on cardio or not. So जितना मैंने research किया है, जितना मुझे पता है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. I will try to explain everything in a layman language. However, अगर आपको research papers पढ़ने हैं, because I have a background in food science and technology, so research papers read करना, I prefer that over anything that is said on Instagram. So वो सारे भी ना मैं description में link कर दूँगी. If you are someone who wants to know that जो भी मैं बोल रही हूँ उसका कुछ backup है कि नहीं, तो आप description check कर सकते हो. And without further ado, let's get started with this video. So the first leg of this video is going to be about my weight loss journey and over the span of 6 years, what has been my relationship with weight loss and weight gain. So in 2015 I completed my +1 and +2. मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी, so काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया था. बस बैठे रहना, खाते रहना एंड पढ़ते रहना, बस यही सब था. So I gained a lot of weight and genetically भी I was not a very slim person. So अगर मैं अपने first and 10th standard के बीच का भी टाइम देखूँ तो I never fell into a thin category and not even in a healthy category. So I was in a normal weight range, but +1 and +2 में I gained weight and by 2015 I was on a weighing scale of like 90 kgs. So काफ़ी ज़्यादा weight gain हो गया था. I started my college life, तब sedentary life से थोड़ी सी movement start हुई and everything. So हल्का फुल्का weight lose हुआ, like 5 kgs, कभी 4 kgs, but it used to bounce back because मैं खाती भी बहुत ज़्यादा थी बाहर का, जैसे college में खा लेना and junk food and everything. However, in the year 2018 I started my weight loss journey because काफ़ी ज़्यादा weight gain हो गया था and I never felt comfortable after a span of time. So मैंने weight loss start किया, उसके लिए I started gymming and that was the very first time I went to a gym and मैंने तब weight training पे बिल्कुल concentrate नहीं किया. It was like hardly, अगर मैं लगाऊँ तो एक दिन में शायद थोड़े बहुत weight lift करती होंगी, बाकी सारा कुछ was cardio, like running on treadmill like for 30 minutes every single day and then stairs वगैरह करना. And the mistake that I actually made उस time was I did a crash diet. So मैंने सब कुछ एक तरह से बंद कर दिया. रोटी हार्डली मैं एक खाती थी, बाहर का मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया. अभी भी मैं सोचती हूँ ना, like hats off to me how I controlled myself for like 4-5 months. I never had a single bite of junk food, like 4-5 months straight, no cheat meal and everything. So obviously it showed up on my body and काफ़ी weight lose हुआ. And over the span of 6 months only मैंने 24 to 25 kgs lose कर लिया and I came to a weight range of like 60 to 63 kgs के बीच में, which has been the most drastic transformation I have ever done. Now why I am talking about this is because मैंने crash dieting की थी. Eventually I started eating out because वो एक sustainable diet नहीं है. मैं खाऊंगी बाहर का कभी ना कभी तो. So जैसे मैं खाने लगी and हल्का फुल्का weight gain होने लगा. And then came the year 2019. I got a job in corporate sector and again the sedentary lifestyle came back.
सो उसमें मैं खाती भी थी, यू कैन अंडरस्टैंड। सो वो सारा कुछ एड अप होके इवेंचुअली मेरा हल्का फुल्का फिर से वेट गेन होने लगा। एंड बाय द ईयर 2023 लाइक स्टार्टिंग आई हैड क्रॉस्ड 80 kgs का वेट मार्क। एंड उसके बाद 2023 के एंड में आई वेड अराउंड 86 kgs। एंड इन 2024 लाइक दिस ईयर 1st of Jan I was again very motivated to lose weight because I was like अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस फिर तो मेरा हो गया, like I'll gain more weight and you know I'll become insecure myself. So I knew I had to focus on my weight loss again. However, I knew for a fact कि मुझे एक sustainable lifestyle बनाना पड़ेगा. I can't just cut out everything from my diet like I did in 2018. Now the thing is, even though मैं अपना diet के ऊपर control नहीं कर पा रही थी, but gym was something and exercise was something जो मेरा consistent रहा है after 2018. And धीरे धीरे मैंने weight training भी incorporate करने लग गई थी अपनी routine में. So वो सारा कुछ plan करने के बाद I started this weight loss journey on 1st of Jan 2024. And by now I have lost in these 8 months I have lost close to 16-17 kgs. Now if you compare it to 2018, ये जो फिगर है बहुत कम है. However, this has been a sustainable way of losing weight for me because in these months I have eaten out, I have gone on trips and तब भी मैंने खाया है. I haven't held myself back कि यार मुझे नहीं खाना, मेरा weight gain हो जाएगा, because I have learned over the years how I can maintain that weight. With this comes the portion of diet. Now when it comes to diet, you have to understand आपको कोई भी diet plan देगा या anything of that sort, उसका मेन क्रक्स यही होता है दैट आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज है यू हैव टू रिमेन इन अ डेफिशिएंट अमाउंट. इट्स जस्ट लाइक कैलोरीज आप जितनी बर्न कर रहे हो दैट शुड बी मोर देन योर कैलोरी इनटेक. सो तभी आपका वेट लॉस होगा. एंड वेट गेन का ऑब्वियसली इसका उल्टा होता है. एंड दैट्स अ वेरी सिंपल फैक्टर जो आपको माइंड में रखना है. एंड इट अप्लाइज टू एवरी वन. नाउ ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर इफ़ यू हैव सम हार्मोनल इश्यूज़ या कोई हेल्थ कंसर्न्स हैं तो ऑब्वियसली यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प उस चीज़ में. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी हार्मोनल इश्यूज़ एंड यू नो फॉर अ फैक्ट दैट योर डाइट इज़ नॉट इन चेक जिसके कारण आप वेट गेन कर रहे हो, सो कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज. सो आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाएगा. आप उसमें अपना वेट डालो, हाइट डालो, जेंडर डालो, बिकॉज जेंडर के बेसिस पे भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो वेरी करती हैं. एंड वंस यू गेट द मेंटेनेंस कैलोरीज आपको उससे कम कैलोरीज इनटेक करनी है पर डे. नाउ मेरी जो जनवरी में मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी इट वाज अराउंड 2100. सो उससे मैंने कम करके जो कैलोरीज है वो 1900 के आसपास लेके आई, देन 1800 एंड एट प्रेजेंट आई टेक 1600 कैलोरीज पर डे, जिससे मेरा वेट लॉस जो है वो हल्का फुल्का होता रहता है. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ, अब वो जो स्केल नंबर जो गिर रहा है वो धीरे धीरे गिर रहा है. बट आई एम हैप्पी विद हाउ एवर इट इज़ गोइंग बिकॉज मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी रही है. आई नो आई एम ईटिंग हेल्दी. नाउ लेट्स अज्यूम यू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड वो भी इसी के अराउंड आती है 2200. सो आप 2000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर रहे हो एंड इट विल बी 12,600 वीकली. नाउ व्हाई आई एम सेइंग वीकली, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी क्योंकि आपको वीकली के ऊपर ही आप अपना पूरा डाइट प्लान करोगे. सपोज देयर इज़ अ डे व्हेन यू वांट टू ईट आउट. सो आपको पता है उस दिन मेरी 2000 से ऊपर कैलोरीज होने लगी हैं. सो तब मैं क्या करती हूँ, बाकी जो वीक है ना उसमें मैं अपनी कैलोरीज जो है 2000 से भी कम ही रखती हूँ ताकि जो वीकली कैलोरीज मेरा इनटेक है वो एक तरह से मेरे वेट लॉस वाले कैटेगरी में ही रहे. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस, जो पहली चीज़ मैंने की थी वॉज गेट अ वेइंग स्केल एंड द सेकेंड वन वॉज डाउनलोड द हेल्दीफाई मी ऐप. आई गेस कुछ और ऐप्स भी होंगे बट मुझे सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है वो हेल्दीफाई मी ऐप ही लगा. नाउ येस, वेइंग योर फूड एंड एवरीथिंग, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे देखा जाता है यार खाना मेजर करके खाना ये वो. सो इनिशियली आई यूज़ टू मेजर एवरी सिंगल थिंग बट ओवर द स्पैन ऑफ 8 months मुझे अब पता लग गया है इतना अमाउंट मैं लूँगी, एक कटोरी है तो इसमें 100 ग्राम्स इतना होगा एंड इतनी कैलोरीज इसमें है. सो आई हैव नाउ बिकम हैबिचुअल टू इट. तो मुझे हर एक चीज़ नहीं अब वे करनी पड़ती. बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आई हाईली सजेस्ट गेट अ वेइंग स्केल. अपना फूड वगैरह
आप मेजर करो, उसको हेल्दीफाई मी ऐप के ऊपर डालो एंड रफली यू विल गेट अ कैलोरी एस्टिमेट कि आपको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं उस पर्टिकुलर फूड से. नाउ लेट्स सपोज यू आर समवन हु डजंट वांट टू डू दैट एट ऑल. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप जितना भी फूड की क्वांटिटी अभी खा रहे हो, सपोज यू आर हैविंग 4 चपातीज़ एंड यू नो आपका वेट गेन हो रहा है या फिर आपका वेट कम नहीं हो रहा, मेंटेन ही है. सो इसमें आप क्या करोगे, 4 चपातीज़ ले रहे हो, 2 चपातीज़ कर दो. अगर 2 कटोरी दाल लेते हो तो 1 कटोरी दाल कर दो एंड स्टार्ट एडिंग प्रोटीन इन योर डाइट. लाइक माई मदर नेवर बिलीव्स इन दिस प्रोटीन पाउडर्स एंड एवरीथिंग. सो इस ईयर में मम्मा की सर्जरी हुई थी एक, एंड उसके बाद डॉक्टर सजेस्टेड दैट शी हैज़ क्रॉस नाउ 50 years ऑफ एज, तो उन्हें प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा. मेरी बात नहीं कभी मानते थे, बट डॉक्टर के कारण उन्हें प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाना पड़ा बिकॉज शी इज़ अ वेजिटेरियन एज वेल, एंड वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर बात की जाए कितना प्रोटीन आपको लेना है, minimum 1 gram per kg of your body weight. So if right now I am weighing 72 kgs, मुझे 72 grams minimum तो प्रोटीन पर डे लेना ही है if I want to retain my muscles and I want to stay healthy in the long run. Now when I say कि आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो, इट डज़ंट मीन कि आपको घर का खाना बंद करना है. मैंने 8 months में घर का खाना बिल्कुल बंद नहीं किया. घर पे जो बनता है मैं खाती हूँ, हर सीजनल सब्जी खाती हूँ एंड एवरीथिंग. व्हाट आई हैव रिड्यूस्ड इज़ कि अगर मुझे पता है घर में मैं खाना नहीं बना रही एंड समवन एल्स इज़ मेकिंग एंड उसमें ऑयल ज़्यादा हो सकता है, तो मैं उसकी क्वांटिटी कम कर देती हूँ. मैं 2 चपाती की जगह 1 चपाती खा लेती हूँ. एंड ऑब्वियसली जब मैं खाना बना रही हूँ, मुझे पता है मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, तो मैं क्वांटिटी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती हूँ. इट ऑल कम्स डाउन टू द कैलोरी इनटेक दैट यू आर हैविंग. नाउ अनदर फैक्टर इन डाइट इज़ हैविंग अ बैलेंस्ड मील. आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रोटीन, राइट? तो उसके अलावा यू नीड टू हैव कार्ब्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट यू नो कि आपको बनाना नहीं खाना चाहिए, आपको वाइट राइस नहीं खाने चाहिए एंड एवरीथिंग. कार्ब्स आपके लिए ज़रूरी है. यू कांट जस्ट कट आउट द कार्ब्स, स्पेशली इफ़ यू आर एन इंडियन एंड यू नो हमारी डाइट में तो कार्ब्स होते ही होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन इनटेक भी रखो. सपोज़ आप 200 ग्राम की सब्जी खाते हो जिसमें कार्ब्स ही हैं, जैसे दाल है. सो दिस इज़ अ मिथ, दाल में प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी इस वीडियो में, जिसमें मैं मिथ्स के बारे में डिस्कस करूँगी. सो इफ़ यू आर हैविंग दाल 2 कटोरी या 200 ग्राम, सो आप उसको 100 ग्राम कर दो एंड ऐड 100 ग्राम्स ऑफ अ प्रोटीन सोर्स. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, सो आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, टोफू ऐड कर सकते हो, लो फैट पनीर ऐड कर सकते हो. So this is how you can have a balanced meal and do not forget to add fiber to your diet. And इस वे से ट्राई कि आप जैसे जैसे दिन के मील्स ले रहे हो, सपोज 4 मील्स ले रहे हो, तो उसको वंस इन अ वाइल यू ट्राई टू बैलेंस इट आउट एंड धीरे धीरे यू विल बिकम कंसिस्टेंट विद इट. नाउ लेट मी गिव यू अ टेम्पलेट ऑफ हाउ माई डेली मील्स लुक लाइक. सो आई गो टू द जिम इन द मॉर्निंग एंड आने के बाद आई हैव ओवरनाइट ओट्स या फिर उसी टाइम मैं ओट्स बना लेती हूँ. नाउ दिस इज़ अ हाई प्रोटीन डाइट बिकॉज एक मैं मसल ब्लेज के जो हाई प्रोटीन ओट्स है वो लेती हूँ एंड आई एड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन इन इट. सो वो ऐड करती हूँ एंड लो फैट मिल्क ऐड करती हूँ एंड देन आई मिक्स इट अप एंड आई हैव इट इन द मॉर्निंग एंड दैट्स द फर्स्ट मील आई हैव. उसके बाद कम्स द लंच. सो वो लंच यूजली मेरे मम्मा प्रिपेयर करते हैं. सो उसमें मैं 1 चपाती लेती हूँ बिकॉज एज आई सेड उसमें ऑयल की क्वांटिटी मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो आई हैव 1 चपाती एंड जो भी घर पे सब्जी बनी है. एंड इफ़ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑफिस का वर्क एंड आई कैन मेक छोटा सा प्रोटीन का सोर्स साथ में, तो आई ऐड स्प्राउट्स या लो फैट पनीर को हल्का सा टोस्ट करके वो ले लेती हूँ साथ में एंड दैट इज़ माई सेकेंड मील. थर्ड मील में अगेन आई ऐड अ स्नैक्स. सो स्नैक्स के लिए में भी मैं मशरूम या ब्रेड बना लेती हूँ मल्टीग्रेन. उसमें अगेन आई ऐड प्रोटीन का सोर्स या फिर मैं लो फैट पनीर ऐड कर लेती हूँ या सोया चंक्स ऐड कर लेती हूँ या टिक्कीज़ बना लेती हूँ. एंड लास्ट मील जो 4th मील होता है दैट्स द डिनर. अगेन आई ट्राई टू कीप इट लाइट. इट डज़ नॉट रियली अफेक्ट कि आप रात को अगर थोड़ा सा ज़्यादा खा लोगे तो आपका अगले दिन वेट गेन हो जाएगा. इट इज़ ऑल कि आपका पूरा दिन में कैलोरीज कितनी रही हैं. सो रात को आई यूजली हैव 1 to 2 चपातीज़ जितनी मुझे भूख लगी. आई डोंट स्टार्व माई सेल्फ. अगर 2 चपातीज़ की भूख है वो आई हैव. देन 1 कटोरी राइस आई हैव विच इज़ लाइक 100 grams ऑफ राइस. उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ. एंड देन अगेन आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट. कार्ब्स तो हो ही गए, उसके साथ कोई प्रोटीन सोर्स ऐड कर लिया, सोया चंक्स ऐड कर लिए या स्प्राउट्स ऐड कर लिए. सो
as I said, I'm taking 1600 calories. So उन 1600 calories को I try to divide 400 calories. ऐसा नहीं है तो कभी किसी में अगर ज़्यादा हो गया तो एक मील में मेरा कम हो जाएगा. And that's how a template of my daily meals look like. Now coming to the second part of this video, which is about, not second actually, the third part of this video, which is going to be about exercise. As I told, in 2018 my main goal was cardio करके weight lose करना है. And cardio was anyway, and I guess even till date it is very much hyped कि cardio करोगे तभी weight lose होगा and everything. एंड तब मेरे माइंड में ये भी था यार मैं वेट ट्रेनिंग करूँगी तो बल्की हो जाऊँगी एंड एवरीथिंग. हाउएवर इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड ओवर द ईयर्स. पूरे हफ्ते में मैं हार्डली 1 घंटा कार्डियो करती हूँ कंबाइंड, लाइक हर दिन 10 मिनट कर लिया या कभी 15 मिनट कर लिया, वो कंबाइन करके 1 घंटा हार्डली मैं कार्डियो करती हूँ. एंड 3 to 4 days a week आई डू वेट ट्रेनिंग एंड आई लव इट. लाइक इवेंचुअली ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज कि मुझे वेट ट्रेनिंग करना पसंद है. And that has, become the main reason why I have not gained weight even after having cheat meals for a long period of time, especially when I am traveling. So as I said in the starting of this video, मैं ये वीडियो बहुत layman terms में बनाना चाहूँगी ताकि सब लोगों को समझ लगे, especially when it comes to weight training. So there are multiple research papers जो कुछ ही recent years में publish हुए हैं which actually back up the benefits of weight training, which I am going to talk about. So first of all, जो मसल है आपका बॉडी का, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन एंड यू आर गोइंग टू क्रॉस योर 30. सो यू नीड टू नो दैट आफ्टर 30 आपके मसल्स जो है दे आर गोइंग टू रिड्यूस, जिसके कारण बॉडी मूवमेंट वगैरह जो है इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट. सो वेट ट्रेनिंग जो है इट हेल्प्स यू रिटेन दैट मसल एंड यू कैन ईजिली मूव योर बॉडी. एंड दिस ऑल्सो कम्स विद द फैक्ट दैट आपको प्रोटीन इनटेक अपना ज़्यादा रखना है. इसलिए आई रियली हैव स्टार्टेड पेइंग अटेंशन कि मेरा प्रोटीन इनटेक कितना है, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर आई क्रॉस 30 इन अ फ्यू ईयर्स तो मेरा जो मसल्स है वो उतना रिटेन नहीं रहेगा. एंड वेट ट्रेनिंग इज़ इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि जैसे मसल बनेगा इट विल गेट बिग, सो उसकी रिटेंशन भी ज़्यादा रहेगी. सो इन द ईयर 2020 आई हैड अ नी फ्रैक्चर एंड उसके अगले साल ही जब मैंने फिर से जिम वगैरह स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड रियली स्लो. नाउ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे सोचते होंगे कि अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आप तो वेट तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते. सो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड रियली स्लो, लाइक एक सिंगल बार के साथ ही, लाइक 20 kgs की जो होती है उसके साथ मैंने हाफ स्क्वाट्स करना शुरू किया. एंड नाउ आई हैव ऑब्वियसली इंक्रीज दैट वेट. एंड व्हाट आई हैव सीन इज, जब मैं बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रही थी अपनी लेग्स की, सिर्फ वॉक वगैरह करने का ट्राई कर रही थी, इवन इफ़ आई यूज़ टू सिट, तो मेरी लेग पे बहुत पेन होता था, स्पेशली जहाँ पे मेरे फ्रैक्चर था. बट ओवर द स्पैन ऑफ दीज 3 years, टचवुड माई लेग हैज़ हील्ड, लाइक माई नी हैज़ हील्ड एंड मेरी मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल हो गई एंड मेरे अब कभी भी पेन नहीं हुई. So this weight training for me, it has really helped me heal the fracture completely. Now another benefit that I have seen of weight training, if I compare it to 2018 जब मैं ज़्यादा cardio करती थी, is that on rest days also I have lost weight. And one thing that I have really noticed is that I look more toned. Like if I put a picture जो आपने देखी भी होगी 2018 में जब मैंने weight lose किया था, so I appear really slim in that because obviously fat lose हो गया and muscle कोई gain नहीं हुआ. So 1 kg of fat that is there, suppose वो lose हो गया. But what has happened in these 8 months is जो वो 1 kg का fat था, it has also given rise to 1 kg का muscle. Like 1 kg of fat has not converted, but it is जो 1 kg का lose भी हुआ है fat, वो 1 kg का muscle भी हुआ है. So consistent weight lose हुआ है जो फिज़िकली ऐसे अपेयर नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, बट इट अपेयर्स इन अ टोन्ड वे. सो आई डोंट मेजर माई वेट एवरी सिंगल डे, मैं मंथ में एक बार मेजर करती हूँ वेट. एंड द वन फैक्टर दैट हेल्प्स मी फील गुड दैट आई एम लूजिंग वेट इज़ हाउ माई क्लोथ्स फिट. सो जब भी आप वेट ट्रेनिंग करोगे, डोंट फोकस ऑन द स्केल, focus on how the clothes now fit you. Now talking about myths, the first myth is really common and आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं तो अपने घर पे ही सुनती आई हूँ बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेजिटेरियन हाउस होल्ड. सो उनके अकॉर्डिंग जो है दाल इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो लेट मी कंपेयर इट विद अ वे प्रोटीन. सो अगर आपको 22.5 grams ऑफ प्रोटीन चाहिए
एक दाल से, सो आपको ऑलमोस्ट 400 प्लस ग्राम्स ऑफ दाल खानी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ जो आपको कैलोरीज मिलेंगी इट विल बी क्लोज टू 350 कैलोरीज। एंड जहाँ मैं बात करूँ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन की, जो आपको ऑलमोस्ट 23 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देगा पर स्कूप, उसमें आपको 130 के आसपास कैलोरीज मिलेंगी। सो यू कैन मेक द कंपैरिजन विच इज़ अ ग्रेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन। However, if you are still a vegetarian, like if you are a vegetarian and आपको protein sources जाने हैं, so you do have sprouts, you have soya chunks, you have tofu, you have paneer, स्पेशली द लो फैट पनीर अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो। सो मैं जो लो फैट पनीर है वो घर पे बनाती हूँ, बिकॉज टोफू इज़ नॉट जस्ट माई कप ऑफ टी। सो आई मेक लो फैट पनीर घर पे ही मिल्क लेके एंड आई पुट विनेगर इन इट एंड घर पे ही लो फैट पनीर बन जाता है। नाउ द सेकेंड मिथ इज़ दैट स्पॉट रिडक्शन इज़ पॉसिबल। इट इज़ completely nonsense। द स्पॉट रिडक्शन आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोल रहा है दैट यू कैन रिड्यूस योर वेट इन योर आर्म्स, इन योर थाइज, इन योर बेली, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। Now your weight gain in specific area is completely genetical. So I am someone जिसकी genetically weight gain जो होता है वो thighs में होता है। So obviously जब मैं weight lose करूँगी तो जहाँ पर fat extra है which is my thighs, वहाँ से जल्दी lose होगा। So it's just all a gimmick कि spot reduction आप कर सकते हो। Obviously जब आप full body exercise करते हो या एक particular muscle की एक्सरसाइज करते हो वहाँ पर मसल डेवलप होता है, बट जो एक स्पॉट रिडक्शन से वेट लॉस है वो आप कभी नहीं कर सकते। Another myth is that weight training will make you bulky, especially if you are a woman. So weight training जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी बल्कि करेगा if you are taking testosterone, and as females we don't have that hormone in us, जिसके कारण weight training से हम कभी भी बल्कि नहीं होंगे। Instead, it will make you look more toned. Another myth is that brown rice are better than white rice or anything brown is better than white. So ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्राउन राइस एंड वाइट राइस की अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपेयर करो, जो यहाँ स्क्रीन पे भी मैं पुट कर दूँगी, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फाइबर इनटेक जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है ब्राउन राइस में, बट उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। इफ़ यू आर डायबिटिक ऑब्वियसली तो आपको वाइट राइस अवॉइड करके कीनोआ वगैरह लेना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू डोंट हैव एनी सच इशू, तो अगर आप वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हो या ब्राउन राइस कंज्यूम कर रहे हो, everything is equal. And finally there are a lot of myths around whey proteins, as I told, and as a food technology student I know that whey protein is made from milk, and anything which is like whey protein for females, whey protein for children and anything of that sort, it is a marketing gimmick. हर वे प्रोटीन पाउडर सेम होता है। ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर कि जिस भी कंपनी से आप बाय कर रहे हो वो सर्टिफाइड है, and they have all the required certificates and it is a trustable brand. उसके अलावा whey protein is not going to harm you in any way. And the final part of this video are going to be some tips that I would like to give you if you are starting your weight loss journey. Now the first tip is about rest. So initially जो research papers हुए थे ना about how much sleep you require, it was done on men because females को consider नहीं किया जाता था किसी भी ऐसी रिसर्च के लिए या मेडिकल रिसर्चेस जो भी होती थी। बट नाउ इट हैज़ बीन फाउंड दैट फीमेल्स रिक्वायर मिनिमम 8 to maximum of 9 to 10 hours of sleep, and it is really important. Like 10 hours, I know everyone is working these days, so that is not possible, but 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी चाहिए, बिकॉज स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स को रिकवर भी करना है। यू कांट जस्ट गो इन टू वेट ट्रेनिंग एक दिन एंड अगले दिन बिना प्रॉपर रेस्ट किए फिर से यू गो एंड ब्रेक योर मसल्स। सो अगर मैं रात को लेट सो रही हूँ एंड मुझे पता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आई डोंट रश इन टू द जिम, इसलिए मेरा 3 to 4 days अ वीक ही रहता है, बिकॉज कभी कभी रात को जब ज़्यादा काम होता है I don't go to the gym the very next day. The second tip is stop ignoring your proteins. Now they are going to be really essential if you are a female who's watching this video, especially if you cross your 30, you would see a huge difference. Like I have seen मेरे mom इतने healthy रहते हैं but उन्होंने अपना protein intake बहुत ignore किया है, and इसी साल उनको whey protein suggest किया है डॉक्टर ने। So it is high time that if you are in your 20s and even in your 25 year of age, so आप
प्रोटीन जो है अपना लेना स्टार्ट करो. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन, आई हैव ऑलरेडी गिवन मल्टीपल ऑप्शंस in this video. Now another tip I would like to give you guys is that if you want to lose weight, please do it for yourself and never give up to bullying. I gave up to bullying in 2018 and मैंने ऐसा weight loss किया कि मतलब वो sustainable ही नहीं रहा मेरे लिए. So this year when I started the weight loss journey, I sat down and I thought कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, and the reason was I love to travel, I love to trek, I want to see the whole world, and if I don't feel healthy in myself, because मुझे धीरे धीरे जैसे I was approaching 90 kgs of weight, मुझे सांस भी चढ़ने लग गई थी and I never felt healthy. So इस बार जो मैंने weight loss किया है अपना, the reason is myself. I want to do it for myself. So never give up to bullying, do it for yourself. And this comes with another tip, that whenever you are starting a diet or you are doing a lifestyle change, make sure कि वो जो चेंज है वो एक सस्टेनेबल चेंज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गिव अप बाहर का खाना कम्प्लीटली, यू कैन डू इट फॉर 4 months, 5 months, 6 months, बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल चेंज. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वो चीट मील्स भी अपने वीक में या मंथ में. Never give it up completely because you are not going to follow it in the long run. The next tip is that stop comparing your bodies to everything that you see online, because online जो है everyone puts their best foot forward. Like वो सबसे best picture ही हम अपनी choose करते हैं, favorites जो add की हुई है उसको edit करते हैं, color correction करते हैं, and जो fitness influencers हैं, lot of them they tweak their pictures and everything. So don't set your expectations based on everything that you see online. And lastly, I can vouch for it that weight loss जो है वो तभी होता है when you are sure how much you want that for yourself. So with that, I will end this video. If you have any more questions, please let me know in the comment section below, or you can reach out to me on Instagram as well. And video अच्छी लगी तो subscribe ज़रूर कर देना. Here are my social media channels, and I'll see you guys next time. Bye bye.